3.1. ठीक है, so we will start with question number 2. I have given you question 1 as a homework. ठीक है, so question number 2 is write each of the following numbers corrected to the number of significant figures which are mentioned in front of them, right? So हमने इनको राउंड ऑफ करना है इन नंबर्स को. इससे पहले हमने ये देखा था कि हम राउंडिंग ऑफ प्लेस वैल्यू पे करते हैं. लाइक अगर हमने 6.475 को राउंड ऑफ करना था तो पहले हम क्या करते थे, हम इनको प्लेस वैल्यूज की बेस पे राउंड ऑफ करते थे. ठीक है, तो अब लेकिन हम ये सीख रहे हैं कि हम नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स की बेस पे भी कर सकते हैं राउंड ऑफ. ठीक है, सो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बेस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसका क्या मेथड है, मेथड इज ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, सो मोहित ने तो उस दिन ये क्वेश्चंस किए थे, इस तरह के क्वेश्चंस. सो आपने अभी देखना, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो आपने मुझे बताना है. तो बिफोर वी राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फर्स्ट क्वेश्चन. 6.475, keeping in mind all the 5 rules we have learned. How many significant figures? जी बेटे, Mohit and Abrish. In the first question, but there are 4 digits. How can significant figures be 5? There are 4 numbers, na? 6.475. So how many significant figures are there? Mohit, आप भी बेटे अनम्यूट करके मुझे बताते जाएं साथ साथ. How many significant figures? 4 significant figures, right? So we need to round it off to 2 significant figures. इसका मतलब 2 significant figures हमने खत्म करने. So this is the underline digit. We will underline the digit जहां तक हमने rounding off करनी है. So 4 is the digit. अगर हम यहाँ पर round off करेंगे, so we will be left with 2 significant figures. ठीक है, अब हमने बिल्कुल उसी तरह round off करना है जिस तरह हम usually करते हैं. 4 से next digit देखेंगे, if that digit is bigger than 5, so this will give +1 to this. ठीक है, अच्छा, now this is important. I will write down the answer 6.5. ठीक है, now usually हम ये 0 0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये 0 लिखती हूँ तो now how many significant figures are there in 6.500? 4 significant figures हैं, because हमने पढ़ा था कि डेसिमल्स में जो लास्ट वाले zeros होते हैं, they are significant. So इसका मतलब है कि this is wrong. I cannot write it down like this. ये 0 0 मुझे नहीं लिखने. So I will just write down the answer as 6.5. And this is having 2 significant figures. So rounding off, so you need to be careful of the rules of significant figures. ये zeros वैसे तो हम कहते हैं इनकी कोई value नहीं है, but when you are writing them, you cannot, decimals में ये दोनों significant बन जाते हैं. Is this point clear, Abrish? Right? ठीक है बेटे. So now moving on to the C part. B part बाद में देख लेते हैं. अच्छा, you need to tell me how many significant figures are there in the number 6,681. Mohit and Abrish, जल्दी से बताएं. Who can answer first? 4 significant, but we need 2 significant figures. So इसका मतलब है this digit will be highlighted. हमने 8 और 1 को खत्म करना है because they are significant ना, तो हमने इनको खत्म करना है. अब हमने देखना क्या होता है, 6 से अगला digit, if this is bigger than 5, so this will give up +1. ठीक है, so ये तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर 37 आएगा. So because it's a whole number, और whole number में हमने rule 5 पढ़ा था कि the last 2 zeros are significant. Sometimes they are significant, sometimes they are not. इस जगह पर they are not significant because यहाँ पर सिर्फ 2 significant figures हैं. ठीक है, so we will write it down as 2 significant figures. This is your answer. 33 and 7 are significant figures and the last 2 zeros are non-significant figures. ठीक है, so moving on to part 3. I hope this is clear. मोहित, ये बात clear है ना? 3700 बन जाएगा 3681. ठीक है, is it clear, Abrish and Mohit? Yes, ma'am. All right, so moving on to next one. 16,001. पहले तो मुझे ये बताएं, how many significant figures are there? 16,001. Ma'am, 5. 5 significant figures. We need to round it off to 3 significant figures. इसका मतलब है this 0 तक हमने round off करना है. अब next is also 0. ठीक है, तो इसका मतलब है कि it will not give +1. तो इसका rounded off answer would be 16,000. अच्छा, अब this is very interesting कि out 16,000 में, this is very interesting. How many significant figures are there? 3 significant. इसका मतलब है कि ये जो लास्ट में 3 zeros है ना, इनमें से ये first 0 is significant. ये significant figures हैं 1, 6 and 0.
सिग्निफिकेंट है, और ये लास्ट वाले 2 जीरोस हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है। यही तो हमने रूल 5 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि होल नंबर्स में लास्ट पे जो जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। सो इन 3 जीरो में से 1 जीरो इज सिग्निफिकेंट, द रेस्ट ऑफ द 2 आर नॉन सिग्निफिकेंट। एंड हाउ डू आई नो कि दिस 1 जीरो इज सिग्निफिकेंट? बिकॉज इट इज रिटन हियर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब है 1 और 6 के साथ साथ ये 0 भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट होता तो फिर ये तीनों जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होते, लेकिन अभी इट इज रिटन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब है फर्स्ट 3 डिजिट्स आर significant and the last 2 are non-significant. ठीक है, so keeping in mind the same thing, next question is 16.999. How many significant figures are there? Mohit and Abrish, better keep your mic unmuted so that you can answer. How many significant figures? 6 5 16.99 5 significant. हमने 3 पे राउंड ऑफ करना है, तो we will underline this 9. ठीक है, now we will look at the next digit. Next digit is also 9. It is bigger than 5. So will it give a share or not? +1 होगा या नहीं? it will give. It will give. तो यहाँ पर +1 आप करेंगे। अब आप इसको सुकून से ऐड कर लें। 9 + 1 is 0. Like I'm writing here 0. Point is still there. There is a carry here, तो it is 17.0. ठीक है, 17.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? मोहित, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 17.0 में? मैम देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, बिकॉज डेसिमल्स में ये लास्ट वाला 0 इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, सो दिस इज फाइन, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। ठीक है, सो दिस इज द फाइन आंसर बिकॉज 1, 7 एंड 0 ऑल 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? सो नाउ जस्ट लुक एट द फोर्थ लास्ट पार्ट, 160.37. 160.37, right? So how many significant figures are there? मैम 4 160.37. और से देखें, अगर 4, if you will say 4, तो कौन सा डिजिट नॉन सिग्निफिकेंट है? मैम 0 Abrish, second rule says कि the zero between two numbers, two non-zero numbers is significant. So ये significant है ये 0. 160.37 में 5 significant figures हैं, right? और हमने इसको कितना राउंड ऑफ करना है? 4 significant figure में। इसका मतलब है we will underline 3. इसके बाद जो नंबर है उसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब हमने ये देखना होता है कि अंडरलाइन डिजिट इज 3, उससे नेक्स्ट डिजिट इज बिगर देन 5, सो इट विल गिव +1। ठीक है, अब अगर आप +1 करें तो ये आपके पास आ जाता है 160.4, right? And that is your answer, 160.4. How many significant figures are there? 4 significant figures. ठीक है, अब इसमें आप 0 नहीं ऐड कर सकते, आप ये नहीं लिख सकते 160.40 because that will make this number a 5 significant figure number, और वो गलत हो जाएगा। और उसका मतलब सेम है, लेकिन वो significant figures में, I was telling Mohit also, आपने बहुत केयरफुल होना है कि डेसिमल्स के आखिर पे आपने 0 ऐड नहीं करना है। ठीक है, उतने ही 0 आने चाहिए जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको चाहिए। ठीक है बेटे, सो नाउ मूविंग ऑन टू दिस पार्ट। अब आपने मुझे आंसर बताने हैं 1 by 1, मोहित एंड अब्रिश। बेटे बेशक अपने माइक अनम्यूट कर लें, देयर इज नो वॉइस नियर यू। अगर आप अलग रूम में बैठे हैं, पहले मुझे ये बताएं, बारी बारी आंसर करते जाएं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 1473? मैम देयर आर 4 significant, and they are asking you to round it to 1 significant figure. हमें एक significant figure चाहिए। Underline 3? 3 को नहीं, नहीं, which is the first? 4 को भी नहीं, 1 significant चाहिए। So only 1, यानी कि ये सिर्फ रहना चाहिए significant figure, बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए 1 से नेक्स्ट डिजिट इज 4, तो 4 तो will not give +1, जिसका मतलब इसका आंसर आता है 1000। ठीक है, 1000 is the answer, और this is 1 significant figure. अब आप मुझे ये बताएं कि 3 zeros हैं, so rule number 5 says कि the zeros at the end of the whole number may or may not be significant. तो आपके ख्याल में ये तीनों significant हैं कि नहीं है? नो मैम, They are not. सिर्फ ये No, 1 ma'am. significant figure है। ठीक है, और ये जो तीनों zeros हैं ये आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट है। और हमें कैसे पता चल रहा है कि ये नॉन सिग्निफिकेंट है? बिकॉज हो सकता है इनमें से एक सिग्निफिकेंट हो या 2 हो, तो हमें कैसे पता ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट है? वी कैन टेल बाय दिस, because in the question it was written 1 significant, so only this 1 is significant, बाकी तीनों के zeros non significant। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल। आप डेसिमल के रूल्स को ध्यान में रखें। ठीक है, फर्स्ट 2 रूल्स एंड थर्ड फोर्थ रूल आर फॉर डेसिमल्स। 571, second one has 5 significant figures 5 significant figures, which one and to we will underline? underline 7. Not 7, 4 significant figure चाहिए ना। 7 हम तब अंडरलाइन करते हैं अब्रिश, यहाँ से मैथ यहाँ से स्टार्ट होता है ना बेटे।
जैसे इसको पढ़ना हो तो 571 पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, और तो हम 5 यहाँ से शुरू करेंगे. सो विच डिजिट टू बी अंडरलाइन, 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3. ठीक है, सो 3 को अंडरलाइन करेंगे. अब 3 से नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, 2 है. विल 2 गिव अ शेयर टू 3? प्लस 1 होगा या नहीं? नहीं होगा. नो. अब देखें 571.3. अब यहाँ पर अगर मैं 30 लिख दूंगी ना पेपर में या किसी टेस्ट में, तो ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे आर आस्किंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और आपने कितने लिख दिए हैं? 5 सिग्निफिकेंट लिख दिए हैं. ये 0 तो सिग्निफिकेंट है डेसिमल्स में, तो आप ये 0 नहीं लिख सकते. ठीक है, आपने याद रखनी है ये बात कि ये 0 कॉन्शियस होकर लिखना है, स्पेशली इन डेसिमल्स. सो दिस इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, 0 वाली बात समझ आ रही है ना? ये 0 हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, बिकॉज ये 0 इसको 4 सिग्निफिकेंट से 5 सिग्निफिकेंट फिगर बना देगा. मोहित, अब आप मुझे बताएं कि व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ 148.25? which 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है? which डिजिट टू बी अंडरलाइन? कौन सा डिजिट अंडरलाइन होगा? which is the third significant? we will underline 8. That's right, we will underline 8, or we will see the 8 से अगला digit is 2. So will 2 give a share? No, so it will be 148. अब देखिए, अगर आप 148.00 लिखेंगे तो that is wrong, because decimals में you cannot write 0. ठीक है, so this will be 148, and this is 3 significant figures. ठीक है, so decimals में zeros, like decimal के बाद वाले zeros आपने नहीं लिखने until they are not needed. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में 38.9712. ठीक है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमने 2 पे राउंड ऑफ करना है. अब्रिश, आप मुझे बताएं विच डिजिट टू बी अंडरलाइंड? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. मैम 8. 8 टू बी अंडरलाइंड. अब 8 से अगला डिजिट इज 9, सो विल 9 गिव अ शेयर? यस. यस, सो इट विल बी +1, तो द आंसर विल बी But the 39. answer is 39. अब आपने इसको 39.0 नहीं लिखना, इसको 39.00 नहीं लिखना, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है, तो ये आपने नहीं लिखने. डेसिमल में यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. 39 इज द आंसर, एंड दिस इज राउंडेड ऑफ टू 2 significant figures. Is it clear, this question? Yes. All right. Mohit also? All right. अब हमने Yes, एक ही नंबर को दिस इज इंटरेस्टिंग, एक ही नंबर है, उसको हमने डिफरेंट तरीकों से राउंड ऑफ करना है. देखिए, आप पहले क्या कह रहे हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस. 3 डेसिमल प्लेस, देखो हमें ये पता चल गया है सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने के बाद कि राउंड ऑफ करने के बहुत से तरीके हैं. जैसे यहाँ पर लिखा 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, फिर आपके पास लिखा 1 डेसिमल प्लेस, ये भी कर सकते थे. अभी ये चीज नहीं लिखी, इन्होंने 2 तरह से राउंडिंग ऑफ की है, ये भी लिख सकते थे. लेट्स से GH आई पार्ट में लिखूं यहाँ पर, लेट्स से टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, इस तरह भी लिखा जा सकता है. ठीक है, सो राउंड ऑफ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं. देखो, अब ये भी मैं लिख सकती हूँ J पार्ट में, फॉर एग्जाम्पल टू नियरेस्ट टेंस. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं K पार्ट में, टू नियरेस्ट होल नंबर. ठीक है, सो ये आपके पास राउंडिंग ऑफ के मुख्तलिफ क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, और मैंने उससे मोहित को बताया था कि राउंडिंग ऑफ, 0.01. सॉरी, हाँ 0.01. 0.01 इज 2 डेसिमल प्लेसेस, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है नहीं, 2 डेसिमल नहीं है. ठीक है, लेकिन यहाँ इसको 2 कर देते हैं बिकॉज 3 डेसिमल ऊपर भी है. 0.01 हो या 2 डेसिमल प्लेसेस, इसका एक ही मतलब है. 0.01 इज 2 डेसिमल प्लेसेस. जैसे 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है 0.001, यानी इस पे राउंड ऑफ करना है. ठीक है, so now let's start this question. Let's follow the same method. So first question is 3 decimal places. 3 decimal places का क्या मतलब है? which digit to be underlined? किस digit को underline करूं for 3 decimal places? अब्रिश एंड मोहित, जी बेटे, किस digit को underline करूं for 3 decimal places? जल्दी से. 3 को? 3 डेसिमल प्लेसेस. 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है? कि डेसिमल के बाद 3 नंबर होने चाहिए. 3 डेसिमल प्लेसेस. 9. 9 टू बी अंडरलाइन, ये वाला 9. ठीक है, सो इसका मतलब है इसके बाद देयर इज 1 विल नॉट गिव शेयर, सो द आंसर वुड बी, व्हाट वुड बी द आंसर? द आंसर वुड बी 183.95 and 1. Yes. 951. अच्छा, कैन आई पुट अ 0 एट द एंड? No. नो वी डोंट. डेसिमल में हम अवॉइड करते हैं 0 डालना खामखा के. ठीक है,
So because that changes the significant figures. Acha, I'm writing this question again, 183.9591. I'm writing this again and again because हमें underline करना है digit. मोहित, अब आप बताएं 3 significant figures. Which digit to be underlined? 3 significant figures. Mohit. Ma'am, the answer you will write 959. Ma'am, 3. Sorry, bete? Oh, 959. Yeah, that's right. Thank you, Abrish. 959. जी मोहित, अब आप बताएं किस digit को underline करना है? 3 significant figure. Which Ma'am, is the three third को- significant? 3 को underline करना है. ठीक है, उससे अगला number is 9. So will 9 give a share? Yes. Yes, it will be. So the answer would be 184. अब देखो, I cannot write 184.0 because that is not right. उसने significant figures बढ़ा दिए हैं. ठीक है, so आपने सिर्फ लिखना है 184. ठीक है, so now I'm writing the question again ताकि हमें पता हो हमने किस digit को underline करना है. 0.9591. ठीक है, so which digit to be underlined? 2 significant figures. अब अब्रिश आप बताएं which digit to be underlined? Which is Ma'am, second 8. significant? 8 to be underlined. ठीक है, अब 8 से आगे there is 3. ठीक है, No, 180. so 3 180. One, मोहित, आपको ये बात समझ आई है ना? किसी ने 18 नहीं कहा, शुक्र है. ठीक है, 180 और it is 2 significant figure. ठीक है, ये rule 5 है 180. इसका मतलब है these two are significant figures and this 0 is non-significant figure. ठीक है, कैसे हमें पता चल रहा है 0 is non-significant? Because it is written in the bracket 2 significant figures. ठीक है बेटे, ये rule 5 है आपके पास significant figures का. Now look at the next one. बल्कि let me write on the number again. 9591. मोहित, अब आप मुझे बताएं which digit to be underlined? 5 significant figures. Which digit will be underlined? 5 significant figures. मोहित, आपकी आवाज नहीं आई. Which digit to be underlined? ma'am, 5. 5 को underline करेंगे. अच्छा, now next to 5 is 9. So will it give It will give a plus 1? It will give plus 1 here. ठीक है, so the answer would be ma'am, it will be 183.96. 183.996. ठीक है, because decimal है तो यहाँ 0 0 नहीं लगाने. ठीक है, it's 5 significant figures. फिर round off हो गया. ठीक है, now next is 1 decimal place. Let me write down the number again. 1 decimal place का मतलब ये है कि decimal के बाद एक digit, एक number आना चाहिए. 183.9591. Which number to be underlined? 1 decimal place. Decimal के बाद एक number होना चाहिए. तो कौन सा number underline होगा? 9. 9 will be underlined. This 9. ठीक है, so इससे अगला digit is 5. Now this is very interesting. ये वो वाला question आ गया जिसमें carry will go forward. अब देखिए 5 will give share or not? 5 will It will give give plus 1 to this, है ना? अब देखिए this is interesting. 9 plus 1 क्या होता है? 10. और point आ गया. अब यहाँ पर एक carry है. ठीक है, so it will become 184.0. 0.0 also, क्योंकि एक Yes. decimal place चाहिए. ठीक है, so if we round it off to 1 0 आ जाता है और यहाँ पर 3 will become 4. अब ये वो रूल है. वैसे तो हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ में अंडरलाइन डिजिट से पीछे वाले नंबर्स चेंज नहीं होते, लेकिन ये स्पेशल केसेस है व्हेन देयर इज अ 9 ऑन द अंडरलाइन डिजिट एंड द नेक्स्ट इज बिगर देन 5 और इक्वल टू 5, सो देन दिस 9 टर्न्स इनटू 10 और ये कैरी फॉरवर्ड होता है. ठीक है, सो दिस इज 184.0 एंड दिस इज 1 डेसिमल प्लेस. सिग्निफिकेंट फिगर को लिखते हैं SF और डेसिमल प्लेस को अक्सर आपने बुक्स में भी देखा होगा DP लिखा जाता है, डेसिमल प्लेस. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर. अब आपने मुझे मोहित बताना है, जल्दी से रेडी हो जाए. 183.9591. 1 significant figure. Which digit to be underlined? Ma'am, it will be 1. 1. Very good. 1 significant है. अच्छा, 1 से next तो हमारे पास है 8. अब क्या होगा? Ma'am, it will give 1. It will give plus 1, है ना? Yes. तो what would be the answer now? This is interesting. Let's see who can tell me the answer. Ma'am, 2. इसका आंसर क्या? 2 आंसर हो जाएगा. लाइक 183.9591 को राउंड ऑफ कर लें तो 2 कैसे आंसर हो सकता है? मोहित, क्या आंसर होगा? 2 तो नहीं हो सकता. Ma'am, 200. 200. वेरी गुड. मोहित, आपका क्या ख्याल है? 200 आंसर होगा. 200. 183.9591. 2 तो नहीं बन सकता, 20 भी नहीं बन सकता. इट इज 200. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें कौन सा फिगर सिग्निफिकेंट है? कौन सा Ma'am, फिगर 2. सिग्निफिकेंट? 2 is significant. What about these two zeros then? Ma'am, They they're are not significant. they are non-significant.
ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है। तभी तो रूल 5 कहता है कि समटाइम्स इन द होल नंबर्स द लास्ट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एंड समटाइम्स दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. So now you have understood, you might have understood this rule more better, you know. Now the next part is, let me write down the question again, number again. So it's 183.9591. So we need to round off to 4 significant figures. So कौन सा number underline होगा? 4 significant figures. Which digit to be underlined? Ma'am, 9. 9 to be underlined. अब देखिए, this is the same as this one. 1 decimal place पे भी 9 को underline किया है और 4 significant figures को भी 9 पे इसका आंसर सेम होगा. 9 पे किया. Next is 5. 5 will give a share and the answer would be 180. Sorry. 4.0. अच्छा, 184.0. ठीक है, और this is 4 significant figures. अब this 0 is significant, इसलिए हमने एक 0 डालना है. ठीक है. The next is 2 decimal places. 2 decimal places का मतलब है कि the last after decimal there are or there should be 2 numbers, 9591. So which number to be underlined? 2 decimal places. किस नंबर को अंडरलाइन करना है? मोहित, 5. अब्रेश, 5 को अंडरलाइन करना है. ठीक है, 2 decimals. Now next digit is 9. So will it give a share? Yes. Yes, it will give a share. It will be 183.996. 96. ठीक है, so ये आपका आंसर है. अब आप देखिए, मैंने आपको कहा था देयर कैन बी मोर ways in which we can write rounding off. मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं. जैसे I have written nearest hundreds. I'm writing the number again. Hundreds का क्या मतलब होगा? Which digit to be underlined? मोहित आप बताएं जरा. Hundreds हैं तो कौन सा digit underline होगा? Nearest hundreds. Which digit to be underlined? अब place values की हम बात करें. हम significant figures की बात नहीं करें. हम decimal points की बात नहीं करें. हम बात करें place value की. Which place value is hundreds? Which digit? जल्दी बताएं, शाबाश. Abrish and Mohit, which digit to be underlined? Nearest hundreds. 9. 9? This one? No, नहीं. no, the last one. ये भी नहीं. ये वाला 9 10th है और ये वाला 9000th है. ये तो डेसिमल के बाद आ रहे हैं ना. तो which digit? मोहित आप क्या कहते हैं? कौन सा digit underline होगा? Nearest hundreds. No, 1. 1 will be underlined. कौन सा 1, Abrish? Last या first? I'm starting 1. Starting वाला ये 100 है. देखो ये आपका होता है. एक मिनट, let me change the color. This is ones, place values tens, hundreds, and this is 10th. डेसिमल में आपको पता है वंस नहीं होता. 10th और this is 100th. ठीक है. This 9 is 1000th यानी कि 1000th part and this last one is 10,000th. ठीक है. So 100th पे हमने राउंड ऑफ करना है. Next is 8. Will 8 give a share? Will it give +1? Yes, it will. Yes. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा आंसर? This will be also 200. Nearest 100 पे राउंड ऑफ करें तो आंसर is 200. अच्छा, what about nearest tens? अगर tens पे राउंड ऑफ करना हो तो which digit to be underlined? मोहित, अगर tens पे राउंड ऑफ करना हो, एक मिनट अवरेश मोहित को बताने दे. मोहित, are you there? मोहित, are you there? मोहित, अगर हमने tens को राउंड ऑफ करना है tens पे तो which digit to be underlined? कौन सा digit underline होगा? इसमें कौन सा digit है? tens पे किस digit की place value is tens? Ma'am, just a second. 8. 8. There are 7. 7 क्या? Ma'am, 8. 8 will be underlined. मोहित इधर देखिए, this is a decimal number 183. तो 8 is the place value tens. ठीक है. So 8 से next digit is 3. So इसका आंसर क्या आएगा? What will be the rounded off answer to nearest tens? 180. 180. Very good. ठीक है. So अब हमने लास्ट में इसको करना है nearest whole number पे. ठीक है. So 183.9591. इसका क्या मतलब है मोहित? nearest whole number. इसका क्या मतलब है? What do you mean by nearest whole number? इसका मतलब है डेसिमल को खत्म कर देना है. इसका मतलब है this 3 will be underlined. Are you getting this point? Nearest whole number is just like we say nearest ones. ठीक है. Because आपने इसमें क्या करना होता है? whole number बनाना है, यानी आपने डेसिमल पार्ट को खत्म करना है. तो this 3 will be underlined. 3 से next is 9. 9 will give +1 to this 3. So the answer would be 184. 184. Very good. ठीक है. Is it clear?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. So now after learning significant figures, we can round off to different, different things can be asked. Sometimes they can say significant figures पे round off करें, place values पे round off करें, और decimals की places के ऊपर round off कर सकते हैं, ठीक है? So ये आपको पता होना चाहिए, याद रखना आपने, ठीक है? So I will share a screenshot also. And I will share this worksheet also. You should take a print out and try it on. दोबारा ये question करें without any help, and then you can match the answer. You can ask me again. ठीक है? 1 second. It is not working. All right. So, beta, any question? No, Is ma'am. it clear? No, ma'am. All right. ma'am. So let's see. I think so. There is no other question. Let me see. I don't know why it is stuck. All right, now it's working. So yes, this is all. Okay, so now let's go to 3.2. 3.2 is having some questions related to estimation also. ठीक है? अच्छा, एक और भी ऑप्शन है, एक और तरह से भी राउंडिंग ऑफ होती है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द यूनिट्स. जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में नियरेस्ट 100 ग्राम, नियरेस्ट 10 ग्राम, नियरेस्ट केजीज. ठीक है, तो एक और राउंडिंग ऑफ का तरीका क्या होता है, यूनिट्स की बेस पे राउंड ऑफ करें, इतने सेंटीमीटर किलोमीटर्स पे राउंड ऑफ करना है. ठीक है, सो वी विल डू दैट आल्सो. अच्छा, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1 is, now these are questions, critical thinking question. आपने खुद सोचना है थोड़ा ना, straight forward questions नहीं है. Hamid rounds the numbers 374.49. I hope the question is clear. Can you see the question clearly, bete? Both of you? Yes, ma'am. Yes, Alright. ma'am. So Hamid rounds the number 374.49 to 375. Explain what mistakes he has made. So who will explain the mistake? 374 को 374.49 को 375 पे round off किया. So what mistake he is doing? Mohit, you were saying something. जी बेटे. What is the mistake? क्या गलती कर दी है उसने? 374.49 को. It can't give the one. What? It can't be 375. Why? Because What this is mistake 4. he has done? Because 374 cannot become 375 because four can't give plus 1 to plus to 1 the to 4. ठीक है, सो ये आप किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे ना. अगर ये पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप किसी भी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. यू हैव टोटल 8 टॉपिक्स, और इन 8 टॉपिक्स में एक टॉपिक है एस्टिमेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो ये आपको डेफिनेटली पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन आने जाहिर है. 100 मार्क्स का पेपर है और 8 टॉपिक्स हैं, तो राउंड ऑफ भी करें तो 8 to 10 मार्क्स इस चैप्टर से आने चाहिए. तो ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. 374.49 को 375 किया, उसने कोई गलती की, आपको गलती समझ आ गई है, किसी भी तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन बिकॉज ही 374.49 कैन नॉट बी राउंडेड टू 375 बिकॉज इट इज द नेक्स्ट डिजिट इज लेस देन 5 और एनीथिंग यू कैन राइट डाउन. ठीक है, any acceptable explanation will be giving you marks. Now the next question, B part is, so describe how Hamid tried to round the number and then give the correct answer. So describe करें कि हामिद ने किस तरह round off किया है, and then you should do the correction. So what will you write here? हामिद ने क्या mistake कर दी है, वो आपने पहले भी explain कर दिया है कि उसने शेयर कर दिया है, because although the next digit was less than 5 but he's still adding. What will be the correct answer? अब आप मुझे बताएं क्या correct answer होना चाहिए if not 375? Any correct answer? जी अब्रेश एंड मोहित. 370. 370? 370 if you round off to nearest tens. ठीक है, तो ये तो आप नहीं लिख सकते. उसने क्या होना चाहिए? 374. ये हम नहीं लिख सकते. 374 we will write down. ठीक है, ये आंसर होना चाहिए, 375 नहीं होना चाहिए. अच्छा, now the B part. The mass of a ship is stated as 47,384 tons to the nearest ton. ठीक है, इसको nearest tons पे राउंड ऑफ किया गया. इसका मतलब इसका डेसिमल खत्म कर दिया गया था. ठीक है, तभी तो वो टन्स पे
राउंड ऑफ हुआ है। अब आपने क्या बताना है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। अब आपने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैथ इज लेस देन 47.384.5। जी, डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैथ इज लेस देन दिस। मोहित एंड अब्रिश, अच्छा आपको क्वेश्चन समझ आया है या नहीं? सबसे बड़ा मसला हमारा ये होता है, नहीं आया। अच्छा, दे आर आस्किंग कि मास ऑफ अ शिप जो है वो ये 47.384 है, लेकिन करेक्ट हुआ है, यानी ये राउंड ऑफ हुआ है नियरेस्ट टन्स में, यानी इसका जो डेसिमल पोर्शन था ना उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग यू दिस क्वेश्चन कि कैन द मास, लाइक इफ द मास इज लेस देन दिस, देखो अगर इससे ज्यादा हो मास 0.5 से, तो ये तो इसको शेयर दे देगा ना राउंड ऑफ होते हुए, और ये 4 की जगह पे 5 आ जाएगा। ठीक है, सो दे आर गिविंग यू फर्स्ट स्टेटमेंट कि मास शुड बी लेस देन दिस नंबर, तो दैट इज ट्रू। ठीक है, बिकॉज अगर ये इससे बड़ा होगा तो ये इस 4 को 5 बना देगा। ठीक है, अगर ये इससे छोटा होगा ना, जैसे 47,384.4 होगा, तो फिर जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 इसको शेयर नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन अगर आपका मैथ इससे बड़ा हो, इवन 384.5 हो जाए, तो दिस 5 will give +1 to this number and this will no more be this mass. Are you getting this point or not? So if they are saying mass is less than this number, so this is true statement. अगर इससे बड़ा होगा तो वो फिर उसको 384 की बजाय 385 बना देगा। Is this clear now? Yes. Yes or not, Mohit? Yes, ma'am. All right. Now you should answer this one. The mass is greater than 47.384.4 tons. Is it correct or not? What do you say? Correct or not? The mass is greater than this. जी बेटे, now you should answer. If the mass is greater than this, यानी इससे greater ये हो सकता है 47,384.5. तो will it be correct or incorrect? Correct. अगर ये करेक्ट हो तो फिर तो ये 5 इसको शेयर दे देगा ना राउंड ऑफ होते हुए, तो ये 5 बन जाएगा। ये वही स्टेटमेंट है, Incorrect. मैथ्स इज लेस। हाँ जी, इट इज इनकरेक्ट, इट कैन नॉट बी लाइक दिस। अगर इस तरह होगा तो ये तो उसको राउंड ऑफ करते हुए +1 कर देता है, और दैट विल चेंज द मैथ्स गिवन अबव। ठीक है, दे आर टेलिंग अस मैथ्स इज 47,384, तो दिस इज इनकरेक्ट। मोहित, ये बात समझ आई है बेटे आपको भी? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, now this question is, Annie says that her rabbit has a mass of 1473 grams. Given this mass is corrected to nearest hundreds, give this mass. हमने इसको round off करना है, simple question है. So what would be the rounded off answer to 1473 को 100 grams पे round off करें तो क्या आंसर होगा? अच्छा, which digit to be underline? 1473 100 grams करना है तो which digit to be underline? कौन सा digit underline होगा? जी बेटे, 100 ग्राम कौन सा डिजिट है? Ma'am, 7. 7 7 तो 10 ग्राम होगा ना। लाइक 1473 इस तरह समझे कि 1473 में कितने ग्राम्स हैं? 3 ग्राम्स हैं। 70 यू कैन से टेंस हैं, और 10 ग्राम है, और 400 जो है आपके पास 100 ग्राम्स हैं, और 1000 आपके पास क्या है? केजी। ठीक है, सो 4 विल बी अंडरलाइन। अब 4 से नेक्स्ट डिजिट इज 7, सो विल इट गिव +1 और नॉट? It will give. इट विल गिव। तो ये क्या बन जाएगा? व्हाट वुड बी द आंसर? Ma'am, 1,500. 1500। ठीक है, दिस इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट ग्राम्स, 100 ग्राम्स। ठीक है, अब देखिए नियरेस्ट 10 ग्राम्स, 1473 को नियरेस्ट 10 ग्राम्स पे राउंड ऑफ करना है, तो व्हाट वुड बी द आंसर? मोहित आप बताएं कौन सा डिजिट अंडरलाइन होगा? 10 ग्राम, 10 ग्राम्स, कौन सा डिजिट अंडरलाइन होगा? मोहित, 10 ग्राम्स पे कौन सा डिजिट अंडरलाइन होगा मोहित? 7. 7 अंडरलाइन होगा। मोहित आप अटेंशन नहीं दे रहे बिल्कुल भी। नेक्स्ट इज 3 जी, तो क्या आंसर होगा मोहित इसका? नियरेस्ट 10 ग्राम से कंफ्यूज ना हो, नियरेस्ट 10 पे क्या आंसर होगा? 1470, राइट? So क्योंकि 3 will not give us share. So now the last question, nearest kg, अब कौन सा डिजिट अंडरलाइन होगा? नियरेस्ट kg 1470 में
73 में कौन सा डिजिट अंडरलाइन होगा? नियरेस्ट kg, which digit is kg? kg 1000 होता है ना, ठीक है, so you will underline this one, ठीक है. Now next one is 4, so will 4 give a share? No, because it is less than 5. तो आंसर क्या होगा? मैम 1000. 1000, that is answer, ठीक है. so ये इस तरह राउंड ऑफ होता है, ठीक है बेटे. so next question is all right, so just give me 1 second. next question is this question. अब ये estimation के questions हैं. Jamila writes down this statement, ठीक है. 1462 multiplied by 401, so the answer is 586.262, and they are asking you के use estimation to describe के why Jamila must be wrong, ठीक है. estimation use करनी है हमने और हमने बताना है कि ये क्या गलती कर रही है जमीला. सेकेंडली हमने क्या करना है, हमने सेकेंडली हमने क्या करना है कि कैलकुलेटर यूज करके एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एंड फाइंड आउट व्हाट मिस्टेक शी हैज मेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द राउंडिंग ऑफ 1462 एंड 401. इसको क्या राउंड ऑफ करेंगे? जी बेटे क्या करें? राउंड ऑफ करते हुए क्या करते हैं आपने? पहले राउंड एस्टिमेशन में क्या करते हैं? हमेशा हम इजी एस्टिमेट. देखो ये बात अब आपको समझने की जरूरत है. यू नीड टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से. एस्टिमेशन हम कब यूज करते हैं? कोई मुझे एग्जांपल दे रियल लाइफ से जहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, और कोई एक एग्जांपल रियल लाइफ से दें जहां हम एस्टिमेटेड वैल्यू भी चल जाती है. कोई सिनेरियो मुझे दें अब्रिश और मोहित, कोई सिनेरियो बताएं जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए रियल लाइफ में. कोई एग्जैक्ट वैल्यू के सिनेरियो मुझे दें. सोचे जरा किस जगह पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. हम वैल्यू अपने इर्द गिर्द जरा नजर दौड़ाएं, किस जगह पे एग्जैक्ट वैल्यू चल चाहिए, किन केसेस में? अब्रिश एंड मोहित जल्दी से. जी बेटे अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी कि रियल लाइफ में किन जगहों पे हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए. हम एस्टिमेशन नहीं यूज कर सकते. Sometimes we use estimation to give or count money. राइट, वी कैन नॉट यूज, है ना. बैंक्स में आपने अगर देखा हो ना, आपके पास जब स्लिप आती है तो फॉर एग्जांपल आपके बैंक में इस तरह की कोई अमाउंट पड़ी है 21,370, सो बैंक वाले इवन डेसिमल भी लिखते हैं 0.37, ठीक है. तो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल. बैंक जो होते हैं ना वो आपके पास किस पे चलते हैं? एक्यूरेट कैलकुलेशन पे, ठीक है. बैंक में एस्टिमेशन नहीं होती. आपके पास इतने पैसे पड़े हैं और वो कहें जी हम 1000 पे एस्टिमेट कर देते हैं इसको, तो हम कह देते हैं जी राउंडेड ऑफ आपके पास 21,000 पड़े. इस तरह तो नहीं कर सकते. बैंक में हमेशा हर ट्रांजैक्शन में एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है, चाहे वो इवन डेसिमल में है. अब ये 37 रुपीज कभी भी बैंक आपको दे तो नहीं सकता, लेकिन बैंक की कैलकुलेशन में डेसिमल्स भी यूज होते हैं. और ये डेसिमल्स आते किस तरह है? मतलब आपने 5000 रुपीज रखवाए हैं, तो ये डेसिमल बनते किस तरह है? क्योंकि बैंक जो होता है जब वो आपकी कटौती करता है ना, फॉर एग्जाम्पल बैंक ने 3% टैक्स काटा है आपके पैसों से, अब 3% टैक्स विल चेंज दैट होल नंबर इनटू डेसिमल नंबर, ठीक है. तो बैंक इस डेसिमल को कभी भी खत्म नहीं करता, ठीक है. सिमिलरली अगर आप सोचें जैसे हम ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बीपी कैलकुलेट करते हैं जैसे किसी पेशेंट का, या किसी पेशेंट की हार्ट बीट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या फिर आप जैसे शुगर कंट्रोल करते हैं, ब्लड शुगर, तो ये वो चीजें होती है जिसमें एस्टिमेशन नहीं चलती, ठीक है. आपको एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. ये ब्लड प्रेशर आया, ये नहीं कि ब्लड प्रेशर इज 162 तो आप उसको कहें राउंड ऑफ करके जी इतना आ गए. तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए, ठीक है. लेकिन कुछ कैलकुलेशंस रियल लाइफ में होती हैं जिनमें आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कैन यू टेल why I am discussing that, ताकि आपको ये पता चले कि एस्टिमेशन की जरूरत क्यों है. और एस्टिमेशन में अभी जब हम इसको एस्टिमेट करेंगे तो क्यों हम इस तरह करें, ठीक है. कुछ चीजें होती हैं जैसे देखें आपने क्रिकेट मैच एक हो रहा है, सो नंबर ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दैट इज लाइक इतना एग्जैक्ट हमें नहीं पता होना चाहिए कि 10,270 लोग जो हैं वो, ये 273 लोग,
क्रिकेट देखने आए हैं, हम राउंडिंग ऑफ यूज करते हैं, हम राउंडेड ऑफ फिगर कह देते हैं कि 10,000 लोग ये मैच देखने आए हैं, ठीक है। सेम इज द केस इन शादी हॉल्स, आपने देखा ना वेडिंग्स में ये नहीं कहा जाता कि एग्जैक्टली वलीमे पे जो है लेट्स से 1219 लोग आए हैं, कोई बाहर खड़ा गिन नहीं रहा होता, ठीक है। हम एस्टिमेट करते हैं, खाना बनाते हुए भी एस्टिमेशन करते हैं कि अराउंड 1200 लोग आएंगे, ठीक है। सो ये एस्टिमेशंस होती हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं चाहिए। अब जब मैं इसको राउंड ऑफ या एस्टिमेट करने लगी हूँ ना, तो यू शुड बी नॉट थिंकिंग कि इतनी इतनी वैल्यू हमने चेंज क्यों कर दी है। अब हम 14 देखो, एस्टिमेशन का मेन पर्पस ये है कि आप उसका आंसर बगैर कैलकुलेशन के निकाल सकें, ठीक है। अब इसमें दो तरह से हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, आप ये ना सोचें कि इसी तरह क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सो पहली एस्टिमेशन में आई एम एस्टिमेटिंग दिस 1462 एज, इसको क्या एस्टिमेट करूं, व्हाट इज द सिंपलेस्ट आंसर 1462, इसको क्या एस्टिमेट करूं 1462 को, सबसे आसान क्या होगा मेरे लिए, 1000 पे राउंड ऑफ करूं या 100 पे, आपकी मर्जी है। अगर मैं इसको 1000 पे राउंड ऑफ करूं तो इसका आंसर आता है 1000, और इसको आप 100 पे राउंड ऑफ करें तो इसका आंसर आता है 400। देखो एस्टिमेशन का पर्पस क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन सिंपलेस्ट हो जाए, ठीक है। अब नाउ आई कैन से दिस आंसर इज 40,000, ठीक है, 40,000। अब एक और तरह से भी एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन का पर्पस ये है कि आप उसको मेंटल मैथ के जरिए से आंसर निकालें, उसमें आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। अब अगर आप सोचेंगे तो आपने बहुत थोड़ा कर दिया मैम, ओके, 1462 को हम राउंड ऑफ करते हैं 1500 और इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 400, ठीक है। अब 15 into 4 is 60, so ये आपके पास आंसर आता है 60,000, सॉरी ये 400,000 है और ये आपके पास 600,000 है, ठीक है। अब देखिए आंसर आपके पास दोनों जो आ रहे हैं वो इस आंसर से मैच नहीं कर रहे, ये तो बहुत ही छोटा नंबर है ना, दिस इज जस्ट 586.262। सो व्हाट यूज एस्टिमेशन टू डिस्क्राइब व्हाई, चाहे आप ये एस्टिमेशन करें या ये एस्टिमेशन करें, आपने ये बताना है व्हाई जमीला मस्ट बी रॉन्ग, बिकॉज़ जमीला's आंसर इज नॉट इवन क्लोज टू द आंसर वी आर गेटिंग आंसर 400,000 एंड शी इज हैविंग आंसर 586.262, ठीक है। सो इसके बाद आपने कैलकुलेटर यूज करके डिटरमिन करना है द एक्चुअल आंसर। सो कैन यू टेल मी इफ यू कैन एक्सेस कैलकुलेटर कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आता है 1462 multiplied by 401। जी बेटे अब्रेश और मोहित, इसका आंसर क्या आता है 1462 multiplied by 401। Ma'am, the answer is same. 586 262। तो जमीला ने क्या गलती किया, उसने ये डेसिमल पॉइंट डाल दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट उसने डेसिमल पॉइंट डाल दिया जिसकी वजह से उसका आंसर टोटली रॉन्ग है, ठीक है। इट डज नॉट मेक सेंस when you are multiplying these two numbers the answer must be a 6-digit whole number, but she has placed a decimal point in between, can you see this decimal, ठीक है। So that is the mistake she did, ठीक है बेटे। So the next questions are all questions of estimation, so can we like have few more minutes and we can discuss these questions, what do you say। फिफ्थ क्वेश्चन इज जल्दी से खत्म कर लेते हैं बिकॉज ये टॉपिक आई डोंट वांट टू टेक दिस टॉपिक ऑन मंडे, ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज, हमने ये बताना है यूजिंग एस्टिमेशन के व्हाई दीस कैलकुलेशंस आर रॉन्ग, ठीक है। यूजिंग एस्टिमेशन वी नीड टू टेल कि व्हाई दीस कैलकुलेशंस आर डेफिनेटली रॉन्ग, लाइक ये बिल्कुल ही गलत कैलकुलेशंस है। फर्स्ट वन इज 15.2 into 66,120, हमने एस्टिमेशन करनी है, इसका मतलब हमने इसको बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन बनानी है। 15.2 को राउंड ऑफ करें तो किस में राउंड ऑफ करें, आसान सा नंबर 15, राइट, और 6,120 को राउंड ऑफ कर लेंगे 6,000 में, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट कैलकुलेशन जिसको हम मेंटल मैथ से सॉल्व कर सकें। नाउ व्हाट इज 15 into 60, सॉरी व्हाट इज 15 into 6, 90 and how many more zeros, 3 more zeros। देखो the answer is 5-digit number लेकिन ये आंसर is 6-digit number, so this is totally wrong, like एक 5-digit number है 90,000 और एक आपने लिखा हुआ है 930,000, so this does not make sense, you know, ये मैच नहीं होते। अगर ये जीरो ना डालते फिर भी हम कहते कि शायद आंसर हमारा सही है, एस्टिमेशन ना करें तो शायद यही आ जाए 93,000, लेकिन इन्होंने तो इसको 6-digit number लिखा हुआ है, तो दिस इज गेटिंग डेफिनेटली रॉन्ग है, लाइक इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो डिवाइड का क्वेश्चन है 65.224, इसको क्या राउंड ऑफ करें 65.224 को क्या राउंड ऑफ करें मोहित, इसको हमने ऐसे करना है मेंटल मैथ में हम कर लें 65 सिर्फ हम इसका डेसिमल हटा दें 65। व्हाट अबाउट 12.4,
12.4, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 12 आ जाएगा, एंड द आंसर इज 12 5 60 होता है ना, तो द आंसर इज 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो इसको अगर 60 कर देना राउंड ऑफ करने की, क्योंकि राउंड ऑफ का मतलब यही है, एस्टिमेशन का मतलब ऐसे नंबर्स यूज करना है कि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो इसका आंसर 5 आता है और उन्होंने आंसर लिखा है 5.26, सो दैट इज अ मीनिंगफुल आंसर। सो इसका मतलब है कि दिस इज सेंसिबल, ठीक है। दे आर आस्किंग यू डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन आर डेफिनेटली रॉन्ग, सो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज सेंसिबल आंसर, क्लोज आंसर है, ऐसे ही कुछ आना चाहिए। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू सी पार्ट, 192 मल्टीप्लाई बाय 4587, तो इसको राउंड ऑफ करें तो कैसे करें? 192 को राउंड ऑफ करें तो लेट्स वी आर राउंडिंग ऑफ टू 190, और 4587 को हम राउंड ऑफ करें तो हम इसको कह सकते हैं 4600 मे बी, ठीक है। या फिर इसको 4000 पे राउंड ऑफ करें तो ये 5000 बन जाए, क्योंकि आपने ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जिसको आप मेंटली मल्टीप्लाई करें। दैट इज द पर्पस ऑफ एस्टिमेशन, कि आपने फिर कैलकुलेट नहीं करना, आपने इसको मेंटली सॉल्व करना है। अब देखिए 19 into 5 क्या होता है? 95, और देयर आर 4 zeros 1 2 3 4, so but the answer they are saying is 880704। इसको अगर 45 पे राउंड ऑफ करें फिर क्या आता है? 190 into 4500, फिर आंसर क्या आता है? इसको बेटे कैलकुलेट करके मुझे बताएं, 45 into 19 क्या होता है? What would be the answer, Abrish और मोहित? क्या आंसर होगा 19 into 45? मैम 855। 855। So this is definitely wrong नहीं है, ये close answer है, so it can be the answer, you know, actually भी यही आंसर होगा शायद, क्योंकि 192 और हमने क्या किया है, 190 को कम किया है और 4500 को भी कम किया है, तो ज्यादा होगा तो ये आंसर आ जाएगा। दिस इज सेंसिबल आंसर, ठीक है। तो ये क्लोज है उससे ना, बहुत ज्यादा बड़ा आंसर नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट वन, 346.92 डिवाइडेड बाय, इसको 2 कर दें और इसको 346.92 है तो 347 कर दें, राइट। सो द आंसर इज यू नो वे बिगर। 347 का हाफ क्या होगा बेटे? और 3 तकरीबन 2 3 6 173 आता है, और इन्होंने आंसर लिखा हुआ है 14.7, so this is definitely wrong answer. Are you getting the purpose of this question? Like we are saying कौन से आंसर सेंसिबल हैं, थोड़े क्लोज आंसर हैं, और कौन से आंसर बिल्कुल ही मीनिंगलेस हैं। जैसे इसमें आंसर इज अराउंड 173 राउंडिंग ऑफ के बाद, एस्टिमेशन के बाद, एंड द आंसर इट इज रिटन इज 14.7, so this is वे यू नो लाइक बिल्कुल ही दूर दूर नंबर्स है ना, कोई सेंस नहीं बनती, so this is definitely wrong. एस्टिमेशन का पर्पस क्या है? आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आपने मेंटल मैथ करना है, इतना आसान करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7.2 स्क्वायर, इसको किसका स्क्वायर कर दूं राउंड ऑफ करके, एस्टिमेट करके? इसको 7 का स्क्वायर करना है और इसको 8 का स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय 4, और ये स्क्वायर रूट, समझ आ रही है? अब ये इसका आंसर देखो क्या आता है, 49 प्लस 8 स्क्वायर क्या होता है? 64, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब ये एस्टिमेशन है ना, एस्टिमेशन में आपने क्या करना है, आपने इसको मतलब अपने हिसाब से चेंज कर देना है। देखो 49 प्लस 64 कितना होता है? 13, और ये आपके पास आ जाता है 113/4। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, 113 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, तो 113 से क्लोजेस्ट कौन सा स्क्वायर रूट है? लाइक 10 का स्क्वायर इज 100, 11 का स्क्वायर इज 121, तो ये 121 हम कर देंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली हम कर देंगे 11/2, ठीक है। सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 113 का स्क्वायर रूट आपको नहीं पता ना, आप इसको अप्रोक्सीमेटली कर देंगे 121, 121 के क्लोज है ना ये, ठीक है। सो 121 कर दें तो ये आपके पास 11/2 आ जाएगा, विच इज 5.5, ठीक है। अब देखिए दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये सबसे क्लोजेस्ट है 5.4 5.5, ठीक है। इस तरह ये सॉल्व करने, ये क्वेश्चंस आपकी बुक में भी है इस तरह के क्वेश्चन। अगर कोई चीज समझ ना आए तो देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑन मंडे, ठीक है बेटे। सो दैट